Namaskar friends, once again welcome back to our channel Prashant Sir Official with yet another very interesting and very important topic, that is FDA 483. In this session we are going to discuss about what is the meaning of FDA 483, what is the meaning of warning letter, what is the meaning of inspection report or audit report, how to respond to 483, what is more important, warning letter or what is more serious, is it a 483 or warning letter or inspection report or audit report, how to respond, what are the checkpoints and what are the don'ts. Everything we are going to discuss in this session about FDA 483. So let us begin. What is 483? In the context of the pharmaceutical industry, 483 refers to FDA Form 483. When the US FDA inspects a pharmaceutical manufacturing facility, they document their observations and any deviations from the regulatory requirements on a form known as FDA Form 483. In simple language, FDA 483 means it's a number of a form on which FDA reports their observations. In India, we record our observation, our FDA record our observations on form number 35. Similarly, US FDA records their observation on form 483. This form lists observations made by the FDA investigators, auditors during the inspection. These observations may pertain to deviations from the current good manufacturing practices, regulatory expectations, quality management system, etc. So now we will discuss about the form 483, audit report, warning letters. First begin with FDA form 483. An FDA Form 483 is issued by FDA inspector after an inspection of a pharmaceutical manufacturing facility. It lists observations of non-compliances with CGMP or other regulatory requirements. The observations on Form 483 are typically considered less serious than those warranting a warning letter. Companies are expected to respond to the observations and implement corrective actions, preventive actions. It does not constitute official notice of regulatory action, but it signals areas where the facility need to improve the compliance. इसका सीधा सीधा मतलब है कि 483 अगर मिलता है तो दैट इज़ नॉट अ वेरी सीरियस इशू. ये एक सिग्नल है कि आपकी सिस्टम वीक होती जा रही है, आपको इमीडिएट एक्शन लेना है, या वी कैन से दैट कि एक अलर्ट लिमिट जैसा होता है हमारा, वैसा एक अलर्ट है, भाई सुधर जाओ. ओके, सो व्हाट इज ऑडिट रिपोर्ट? एन ऑडिट रिपोर्ट इज अ डॉक्यूमेंट जनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ एन इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट कंडक्टेड बाय अ कंपनी और अ थर्ड पार्टी ऑडिटर और रेगुलेटरी अथॉरिटीज. In addition to 483, a regulatory authority typically provides a separate inspection report, that is audit report. This audit report outlines the findings of the audit, including the areas of compliance and non-compliances with internal policies, industry standards, regulatory requirements, GMP requirements, different guidelines of different countries, safety features, etc. Safety in the sense safety to the patient or end user safety. Unlike an FDA Form 483, an audit report may cover a broader range of topics beyond regulatory compliance, such as operational efficiency or financial practices also. Okay, so what is warning letter then? A warning letter is a formal communication from the FDA to a pharmaceutical company, typically issued after serious regulatory violation. इसका मतलब है वार्निंग लेटर तभी इशू किया जाएगा जब आप सीरियस रेगुलेटरी वायलेशन किए हो तब. It is more severe than the Form 483.
failure to address the concerns raised in the warning letter can lead to further regulatory actions such as a product recall, fines, cancellation of your registration, etc. A warning letter outlines specific deficiencies, provides instructions for corrective actions, and may indicate potential legal consequences if the issues are not addressed. Okay. So, how to respond to 483? हमारा ये सेशन का मेन पर्पस था to understand the 483. So, I am more focusing about the 483. Okay. Now, how to respond to 483? What are the checkpoints if you receive FDA 483? Number 1, check for any guideline released by the FDA on observations. Number 2, read and understand guidelines and ensure that all documents are in line with the guideline. Okay. Number 3, if you are not clear on any of the observations, first request for clearance through email. That is response only if you have clarity on the observation. क्योंकि क्या होता है, अगर हमारा अंडरस्टैंडिंग ही गलत है तो हमारा रिस्पॉन्स भी गलत जाएगा. अगर हमारा रिस्पॉन्स गलत जाता है तो क्या होता है, हमारा माइनर ऑब्जर्वेशन मेजर में कन्वर्ट हो सकता है, मेजर ऑब्जर्वेशन क्रिटिकल में जा सकता है. सो अनलेस अदरवाइज यू हैव क्लैरिटी अबाउट द ऑब्जर्वेशंस, you should not respond to the observations. Okay. Number 4, determine, investigate, identify the exact root cause, then only respond with the appropriate corrective actions and preventive actions with all required evidence. मैंने ये कापा ले लिया करके बोलेंगे तो नहीं होगा, आपको वो कापा के साथ उसके एविडेंस देने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, फोटोग्राफ्स देने पड़ेंगे, अगर कुछ परचेस किया है तो उसके चलन देने पड़ेंगे, उसके क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड्स देने पड़ेंगे. राइट. नंबर 5, once responded to FDA, be in touch with the FDA to ensure your response action plan is accepted by FDA. एक बार हमने रिस्पॉन्स दे दिया तो आराम से बैठ गया, ऐसा नहीं होता है. हमको FDA के साथ फॉलोअप लेना पड़ता है, हम्बल रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि हमारा जो हमने रिस्पांस दिया है इज़ इट एक्सेप्टेबल, आपने गो थ्रू किया है कि नहीं किया है, एंड उनके पास से अपने को कंफर्मेशन आना चाहिए. ओके. नाउ नेक्स्ट वन, स्टेप टू रिस्पॉन्ड टू 483. क्या है स्टेप्स? नंबर 1, रिव्यू द ऑब्जर्वेशंस केयरफुली, अंडरस्टैंड द एक्सपेक्टेशन. जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि unless otherwise you have the clarity, you should not respond to the observation. Discuss with all concerned departments to address the similar failure in other areas and create an action plan. एक एरिया में एक ऑब्जर्वेशन मिलता है तो FDA का या इंस्पेक्टर्स का ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि आपने सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशंस अदर एरिया में और सिमिलर काइंड ऑफ गैप्स अदर एरिया में अगर है, you have to consider those gaps and while responding you have to respond accordingly कि हमने other than this ये एरिया के गैप भी क्लोज कर दिए, हमने अप्रोप्रिएट कापा लिया है. फॉर एग्जांपल एक एरिया में अगर आपका टेम्परेचर फेल्योर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी फेल्योर है तो आपको सारे एरिया में ऐसे कोई ऑब्जर्वेशन है क्या वो देखने पड़ेंगे. अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिफाइन द कापा. ओके. इम्प्लीमेंट द चेंजेस रिक्वायर्ड थ्रू द चेंज कंट्रोल. कंसिडर होलिस्टिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, ये हमने डिस्कस किया. कम्युनिकेट विद FDA एंड मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ द कापा रेगुलरली. एक बार हो गया तो वो रिस्पॉन्ड करो और कापा रेगुलरली मॉनिटर करो. ये सिंपल 4 स्टेप्स है. ओके. नाउ पॉइंट्स टू बी कंसिडर व्हाइल राइटिंग अ रिस्पॉन्स. नंबर 1, समवन फ्रॉम हायर मैनेजमेंट फ्रॉम क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट शैल राइट अ रिस्पॉन्स. तो क्या होता है, एक अथॉरिटी है, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी अगर रिस्पॉन्ड करे तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, इसके लिए समवन फ्रॉम द हायर मैनेजमेंट शुड रिस्पॉन्ड. ओके. इंक्लूड अ कवर लेटर एंड ओपनिंग स्टेटमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू से थैंक्स टू द ऑडिटर फॉर देयर ऑब्जर्वेशंस, फॉर देयर गाइडेंस, फॉर देयर प्रोफेशनलिज्म एंड फॉर देयर सपोर्ट ड्यूरिंग द ऑडिट. ओके. रीराइट द ऑब्जर्वेशन अबाउट योर रिस्पॉन्स. ये क्या बोल रहा हूँ मैं, कभी कभी क्या होता है हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो अथॉरिटी है उसको हमारे ऑब्जर्वेशंस पता है, तो ऐसा होता नहीं है. कभी कभी क्या होता है, इंस्पेक्शन करने वाली टीम अलग होती है, आपके ऑब्जर्वेशंस कापा रिव्यू करने वाली टीम अलग होती है. इन दैट केस
our response should be in a such a way that the reviewing authority does not know anything about our observations. So first you have to rewrite the observation. पहले ऊपर ऑब्जर्वेशन डाला, उसके नीचे हमारा रिस्पॉन्स डाला, उसके नीचे हमारे जो एविडेंस है उसके रेफरेंसेस डाले. तो हर ऑब्जर्वेशन को हमें इसी तरह से एड्रेस करना है. If kappa will take time to implement, then include what will be done in interim to comply with the GMPs. Right? कोई kappa है उसको हमको टाइम लगता है, तो हम क्या करते हैं, टारगेट कंप्लीशन डेट TCD थोड़ा 6 महीने का देते हैं, 5 महीने का देते हैं, 4 महीने का देते हैं. FDA इज ओके विद दैट. लेकिन क्या होता है, हमको ये भी बताना पड़ेगा कि हमारा कंप्लायंस लेने के लिए, हमारा कापा लेने के लिए हमें टाइम चाहिए. बट in between that duration, 1 2 3 4, these are the actions we have implemented to comply with the GMP requirement. Okay, that will be a value addition and that will be well accepted by the FDA. Include all actions already implemented, provide evidence. हमने जितने भी एक्शन लिए उसके सारे एक्शंस लिए हैं, और उसके साथ अगर आप एक्शन लिए बोल रहे हो तो ऑलवेज सपोर्ट विद द एविडेंसेस. ओके. Number 7, define how actions taken will enhance compliance and avoid reoccurrence. Define how the firm will monitor progress and verify the effectiveness of the CAPA. Include actions taken to improve employee awareness. क्योंकि क्या होता है, बहुत बार ह्यूमन एरर हम लिखते हैं या वायोलेशन ऑफ SOP, डिपार्चर फ्रॉम डिफाइंड प्रोसीजर्स, ये करने वाले लोग ही होते हैं. तो हमारा फोकस कोई भी ऑडिट रिस्पॉन्स विदाउट ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग इवैल्यूएशन कंप्लीट नहीं होता है. सो इंक्लूड द एक्शन टेकन टू इंप्रूव द एम्प्लॉय अवेयरनेस एंड एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट बाय रिविजिटिंग देयर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बाय imparting different trainings based on the observations and training evaluations. Right? प्रोवाइड रियलिस्टिक TCDs. ये टारगेट कंप्लीशन डेट्स जो देते हैं, दोज डेट्स शुड बी रियलिस्टिक. मतलब अगर ये चीज़ हम 6 महीने में करने वाले हैं तो वो होनी चाहिए. अगर आप कोई चीज़ है जो आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है, ऐसे कोई चीज़ है आप बोले कि 2 दिन में करेंगे तो पॉसिबल नहीं होता है. सो ऑलवेज प्रोवाइड अ रियलिस्टिक TCDs एंड अलाउ सफिशिएंट टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रपोज्ड एक्शंस. आप अगर रियलिस्टिक TCDs देते हो तो FDA विल बी वेरी हैप्पी टू रिसीव दोज कंप्लायंसेस. वो सोचते हैं कि आपने होलिस्टिकली कॉम्प्रहेंसिवली ऑब्जर्वेशन को पढ़ा है, आप ऑब्जर्वेशन समझे हो, इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, और बेस्ड ऑन दैट यू आर गोइंग टू टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन. सो क्वेश्चंस में क्या है, इफ द फर्म डजंट हैव सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज, कैपेबिलिटीज, टाइम और नॉलेज टू रिस्पॉन्ड टू द ऑडिट, to audit observations, especially when writing to the authorities, better to seek external assistance or appoint a consultant who will respond or write a response to the audit observation so that chances of acceptability will improve. हमारे पास कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं है, हमारी कैपेबिलिटी नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, और हम जल्दबाजी में कोई रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो दैट विल बी अ वेरी नॉट एक्सेप्टेबल थिंग है. वो उससे कुछ फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो सकता है. जैसे मैंने बोला कि माइनर वाला ऑब्जर्वेशन मेजर में कन्वर्ट हो सकता है, मेजर वाला क्रिटिकल में जा सकता है, एंड दैट विल बी वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन. अदर क्वेश्चंस क्या है, ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स. ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स में क्या होता है, इट इंक्लूड द मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा दैट इज नॉट वारंटेड विद होप्स that the reviewer will impressed with the work. This type of response sends an immediate warning signals to the auditor that issue are being glossed over. दूसरा क्या है, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी चाहिए. क्या होता है, ड्यूरिंग द क्लोज आउट और इन द रिस्पॉन्स लेटर इटसेल्फ आर्ग्यू एवरी पॉइंट्स. इन दैट कभी कभी ऐसा लिखते हैं, दे आर नॉट अप्रोप्रिएट, दे हैव we have never had an issue with this point from other auditors. हमने पहले कभी नहीं आया, ऑडिटर को समझ में नहीं आता है, या दूसरे ऑडिटर ने क्यों नहीं उठाया, इससे 10 साल से काम कर रहे हैं.
तो ऐसे टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हमको ऑडिट रिस्पॉन्स में नहीं लिखने हैं। अदरवाइज क्या होता है दैट द ऑडिटर हैज़ अ स्ट्रांग मैसेज ऑफ नॉन कंप्लायंस टू द ऑडिटर बॉडी। वो ऐसा बोलेंगे कि इनको समझ में नहीं आया है, तो जैसे मैंने बोला वो सिचुएशन क्रिटिकल होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद रैपिड और इमीडिएट रिस्पॉन्स। यहाँ पे क्या है, मैं क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपका ऑब्जर्वेशन इशू सिंपल है, इन दैट केस रैपिड और इमीडिएट रिस्पॉन्स इज ओके। अगर कॉम्प्लेक्स ऑब्जर्वेशन है तो इमीडिएटली चेंज इंप्लीमेंट करना डेंजरस हो सकता है। आइदर ड्यूरिंग द क्लोज आउट मीटिंग और विथ क्विक रिस्पॉन्स ऑल चेंजेस हैव बीन implemented for a complex issue that is not acceptable. However, complex observations, a rapid response indicates that the firm has taken knee-jerk reaction and implemented corrective action without thinking of the root cause, without understanding the depth of the observations. So, rapid or immediate response जहाँ पे पॉसिबल नहीं है वहाँ पे मत करो। नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द ऑडिट, ये भी कभी कभी होता है। उसमें क्या होता है, एक्शंस में बी टेकन बट नो फॉर्मल लेटर इज सेंड इंडिकेटिंग दैट दीज एक्शंस आर टेकन और XYZ करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस आर टेकन। इसका एक रिस्पॉन्स जाना चाहिए ऑडिटर को, वो हमारी तरफ से जाता नहीं है, तो ये एक हमको ध्यान में रखने वाली चीज़ है। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स अबाउट द 483। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये इन्फॉर्मेशन बेसिक है बट इम्पॉर्टेंट है, आपको आई ओपनर की तरह इन्फॉर्मेशन काम करेगा, आपके कंप्लायंसेस इम्प्रूव करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, कॉन्टैक्ट्स। If you are new to my channel, please do subscribe my channel and don't forget to click on the bell icon so that you will be notified for all upcoming videos. Thank you friends. Jai Hind.